Good morning and welcome to the second day of 29th Annual National E-Conference of MCAM Pune, organized by Gokhale Education Society's HL College of Science and Commerce OZR in collaboration with Dr. MSG Foundation Mumbai. The theme of this year's conference is National Education Policy 2020. We begin with the third technical session. The topic of the session is National Education Policy and Teacher Education. I request Dr. V.N. Suryavamshi, Principal of HPT Arts and RYK Science College, Nashik, to take charge of the session. Good morning. On the occasion of 29th Maharashtra Council of Education and Administration Management Conference, second day, this technical session first. It is the Sir Dr. M.S. Gosavi Felicitation Lecture on the topic of National Education Policy and Teacher Education. I welcome all Honorable President of this MCAM and of this conference, Sir Dr. M.S. Gosavi, Director General and Secretary of the Gokhale Education Society, Honorable respected Principal Dr. Mrs. D.P. Deshpande Madam, Director HR of the Gokhale Education Society, Conference Secretary, Principal Dr. S.R. Khandelwal, the keynote speaker for this technical session, respected Professor B. Devraj Sir, Joint Secretary of the MCAM, officials of the MCAM, the officials of the Gokhale Education Society, delegates, participants, ladies and gentlemen. It is my great and good fortune to introduce the keynote speaker for this technical session, respected Professor Devraj Sir. It is my good fortune that I got opportunity to work with Professor Devraj Sir under his guidance, and he has given me number of opportunities to work under him. Sir is the alumnus of the Gokhale Education Society, specifically the HPT Arts and RYK Science College. He has completed his post-graduation from the HPT Arts and RYK Science College in English, and after that Sir joined the Gokhale Education Society's Nashik Road College as the teacher, where he established himself as the popular teacher in English. He was one of the best teachers in English in the University of Pune also. He has worked in the Gokhale Education Society's HPT Arts and RYK Science College as head of the department of the English department, and where he introduced the language laboratory, first of its kind in the Department of English. This was the great contribution Sir has given to the HPT Arts and RYK Science College when nobody was knowing that there has to be a laboratory in even language departments. Sir then worked as the Vice Principal of the HPT Arts RYK Science College, where he introduced the different courses, specifically the Functional English course in the Department of English, which was conducted by the Department of English. Similarly, the Travel and Tourism Management. Sir has also worked as the principal of the HPT Arts and RYK Science College and encouraged all of us here to introduce the new courses. Devraj Sir has also worked as the branch secretary of the HPT Arts RYK Science College Center, where he again encouraged all of us here to introduce the new courses which are useful to the students. Sir has worked as the zonal secretary of the Gokhale Education Society, where he guided all the principals to introduce new and useful innovative activities for the students in all the departments. Specifically, Sir was instrumental and has taken initiative
in organizing the training for the staff members, the faculty, from the school teachers to the college teachers, and many of our staff members have been benefited by his guidance. This staff training academy has been continued even now in Gokul Education Society. Sir is a good orator, he has the command on English, and most of all he is the best teacher. I welcome sir on behalf of the MCEAM and on behalf of all the delegates present over here, and I request sir to guide us on the topic of the national education policy and teacher education. Welcome you sir and request you to guide us. आदरणीय गोसावी सर, प्रिंसिपल पंडित सर, डॉक्टर साली, डॉक्टर एडके मैडम, heads of the institutions, delegates, and Dr. Suryavanshi sir. I feel privileged and honored to deliver a talk that honors Dr. M.S. Gosavi sir. Sir has literally redrawn the multi-layered map of Nasik. There is hardly any sphere of learning that sir has not touched. Through years of dedicated service in the name of humanity, sir has transformed the life of thousands of students who had the good fortune to come into his contact. Himself a master of the art of living, sir has shaped the destiny of countless students. It is thanks to his initiative that Nasik campus has become a quality educational hub. Women empowerment through SMRK, BKAK Mahila Mahavidyalaya, employment creating professional courses, College of Engineering, College of Pharmacy, Institute of Nursing Education, College of Physiotherapy, Polytechnic Institutes, Colleges of Law and Education are indeed the fruits of his visionary leadership. As a management guru, sir gave to Nasik one of the first ever MBA Management Institute and also the home of commerce studies, namely BYK College of Commerce for the aspiring youth of Nasik. The Shiva Parvati Pratishthan recognizes the achievement of people in diverse fields like sports, academics, music, fine arts, social service, Vedic studies, and honors the achievers. Sir is indeed a living legend who believes in doing good to one and all. His public discourses have inspired generations of youth. To be with sir and to listen to him is true education. His only religion is to shape the lives of youth and make them worthy contributors to the enrichment of the country. It is for this reason that I said at the outset, it is an honor and a privilege to deliver this talk that is associated with sir's name. May God grant him good health and energy to continue to serve the people as he has been doing for well over 60 decades. Now about the new education policy 2020. The new education policy is aptly described as a potential game changer. It is welcomed by almost all the sections of the society. It has raised high hopes. The present half paralytic education system needed urgent treatment, and the new education policy is the answer. The optimism raised by the new education policy is not misplaced. It is a very fine policy statement and a step in the right direction. We want our youth to be really well educated to play a significant role in the task of nation building. We want them to uphold the central values of life and contribute to the economic rise of the country. We want them to value the cultural heritage of the country and respect the vast diversity of our unique country. We want them to be well grounded in multiple branches of education. We want them to be multi-skilled. The new education policy hopes to contribute richly in the making of
a new India. But let us pause for a while to read the tailpiece of the editorial column that appeared in the Times of India a few days ago with alarming statistical information. Survey by an international organization has found that there is a shortage of over 1 million school teachers in the country today, a gap which will get wider over the next 15 years as 30% educators will have to be replaced. Over a lakh of schools have just one teacher, often underqualified for all subjects. A total of over 11 lakh teaching positions are vacant with no takers for them, with UP and Bihar being the worst offending states. The main reason is that school teaching is among the worst paid jobs in the organized sectors, with private schools by and large paying much less than the government schools. While the much discussed national education policy busies itself with reforming the curricula and subject matter, the more urgent issue is to ensure a better monetary deal for those in charge of our classrooms. However, the chances of this happening are not very bright. In the last budget, there has been a cut in the allotment of funds by 6% from 59,845 crore to 54,873 crore. But let not the alarming statistical information shatter our hopes of building a new India with the help of new education policy. The new education policy 2020 aims for major overhaul of Indian education system. It is expected that the education system will be completely transformed by 2040. As education is concurrent subject, implementing the policy will require approval of the states. Now, what are the positive impacts of the new education policy? Schooling years are changed from 10+2 format to 5+3+3+4 format. For the first time, early childhood care and education, that is ECCE, is also included in education policy. Anganwadis and private preschools will take care of CEE of children. Anganwadi centers will be strengthened by 2030 to provide equitable access to ECCE for all children. This policy aims to achieve 100% gross enrollment ratio in the preschool to secondary schools by 2035. New education policy aims to eliminate rote learning and to promote the holistic development of children. The present curriculum and pedagogy will be revamped to make it suitable for 21st century. Present intermediate education is in terms of groups, PCM, PCB, etc. After studying these courses, the students have to go into that career path, but this is eliminated in new education policy. The 4-year undergraduate course will have wide choice of subjects for the students to choose from. Arts, occasional crafts and physical education can also be chosen. There will be no hard separation among curricular, extracurricular, co-curricular areas among arts, humanities and sciences or between occasional or academic. In general, occasional course is considered as inferior to mainstream education, but occasional education improves the employability of students. In the developed countries, many students go for occasional subjects. In South Korea, 95% of students go for these subjects. In the US, it is 52%, and in Germany, it is 75%. Now, the occasional subjects are integrated into mainstream education so that it will be beneficial for Indian economy. At present, intellectual skills are developed in schools, but that is not sufficient for the overall development of children. So, new education policy proposed imparting emotional skills such as empathy, communication, teamwork, leadership quality, etc. in students. For holistic development, children should be taught many things apart from education.
New Education Policy 2020 stresses on encouraging creativity and innovativeness in students. They will be given knowledge of necessary things such as new technologies, digital literacy, fundamental duties, social issues, etc. by revamping the curriculum. Right to education is extended from 14 years to 18 years. Online distance learning, massive open online courses will be given adequate importance. This can reduce the number of dropouts too. Textbooks containing the core concepts will be the same for all at the national level, and at the same time supplement materials can be added as per the local context and needs. Till now, many higher education institutes are providing limited courses, but with NEP 2020, colleges would be fully integrated into university or converted into autonomous degree-giving institution. College will become multidisciplinary institution by providing wide choice of subjects. It has made degrees flexible by providing entry and exit options to degree courses. Appropriate certification will be provided depending on the years of study. If one chooses to quit after the year, he will obtain a diploma. If he quits after 2 years, advanced diploma will be awarded. India will be transformed to a global study destination by allowing top 100 universities of the world to open colleges in India. No student should be deprived of higher education for financial inability. To make education inclusive, financial support will be provided to socially and economically disadvantaged groups. At present, our exams award memorization skills, which encourages rote learning. This is the most criticized part of Indian education system. New education policy proposes the overhaul of assessment methods to promote critical thinking skills. To reduce exam stress on students, board exams can be taken on 2 occasions during any given school year, one main examination and one for improvement. A regulatory system will work towards stopping the commercialization of education. Teachers will be given constant opportunities, which is called continuous professional development for self-improvement, to learn the latest innovations, pedagogy, storytelling based approach and advances in their profession. 50 hours of CPD per annum will be provided for teachers. Committed teachers will be recognized and will be encouraged with incentives such as an increase in salary, promotion, etc. All these things can make the teaching profession lucrative and attractive. Teachers have a huge role to play in the new education policy, as they are at the core of the document. It is in this context that teacher education becomes an important component. We have to strive to create a pool of teachers that will shape the next generation. Teacher preparation is an activity that requires multidisciplinary perspectives and knowledge, formation of dispositions and values, and development of practice under the best mentors. Teacher must be grounded in Indian values, languages, knowledge, ethos, traditions, including tribal traditions, while also being well versed in the latest advances in education and pedagogy. According to Justice Verma, a majority of stand-alone teacher education institutes, that is over about 10,000 in number, are not even attempting serious teacher education, but are essentially selling degree for a price. Regulatory efforts so far have neither been able to curb the malpractices in the system, nor enforce basic standards for equity, and in fact have had the negative effect of curbing the growth of excellence and innovations in the sector. The sector and its regulatory system are therefore in urgent need of revitalization through radical action in order to raise standards and restore integrity, credibility, efficacy and high quality to the teacher education system. In order to improve and reach the level of integrity and credibility required to restore the prestige of
teaching profession, the regulatory system will be empowered to take stringent action against the substandard teacher education institutions that do not meet basic educational criteria. By 2030, only educationally sound, multidisciplinary and integrated teacher education programs shall be in force. As teacher education requires multidisciplinary inputs and education in high quality content as well as pedagogy, all teacher education programs must be conducted within the composite multidisciplinary institutions. To this end, all multidisciplinary institutions and colleges will aim to establish education departments which, besides carrying out cutting edge research in various aspects of education, will also run B.Ed programs in collaboration with other departments such as psychology, philosophy, sociology, Indian languages, arts, music, history, literature, physical education, science and mathematics. In the educational sector, what India needs today is not mere change but a revolution. So, the new education policy and its implementation should become a national movement. When the implementation of the new education policy becomes a national movement and we succeed in it, then only we can say, well, we have done it. Thank you, sir. I thank respected Professor Devraj sir for guiding us on the topic of national education policy and teacher education on the occasion of Sir Dr. M.S. Gosavi felicitation lecture. Sir has guided us in detail on the teacher education. Specifically, the teacher has to be a lifelong learner and a good communicator. Sir always advised us that make use of the proper words and languages. The teacher should have good command on the language. Thank you very much, sir. I also thank all the dignitaries present on this occasion. Thank you one and all. Thank you very much. Thank you, sir. After that wonderful session by Professor B. Devraja, we are now going to begin with our fourth technical session on outcome-based teaching and learning. The expert speaker for this session is Mr. Sachin Joshi, Director of Espalier Schools, Nashik. I request Dr. Mrs. Anjali Kulkarni to introduce Mr. Sachin Joshi. Namaskar. Good morning. I am Dr. Mrs. Anjali Kulkarni, Principal of N.B. Mehta Science and Commerce College, Bordi, and the coordinator of the Staff Training Academy of Gokhale Education Society. I welcome you all to the fourth technical session entitled Outcome-Based Teaching, Learning in the two-day national level 29th Annual Conference of MCEAM, Maharashtra Council of Educational Administration and Management, Pune, being held in the virtual mode. The focus of this conference has been the National Education Policy 2020, with sub-themes such as multidisciplinary education, reimagining vocational education, teacher education, and the present session will focus on outcome-based teaching and learning. I welcome all the office bearers of MCEM and the keynote speaker of the session, Sri Sachin Ushavilas Joshi, Director, Espalier Experimental School, Nasik. In fact, the extraordinariness of Mr. Joshi starts from his very name. His insistence of including his mother's name while mentioning his complete name, Mr. Sachin Ushavilas Joshi. It is indeed a tribute paid to all mothers who are the first teachers of every child. All the students who belong to Espalier School also follow this trend. The second striking characteristic is the name of the school he has founded on Gandhian principles. Espalier, which actually originates from French and means to train with a certain objective or point of view.
Mr. Joshi is a renowned education activist working for the cause of all-round development of students through education. His innovative venture, recognized by Limca Book of World Records, like School on Wheels, mobile schools for underprivileged children, or School for Failures, enabling those who failed in conventional systems of education. His mission has been to replace the blackboards with experiential learning. His experiments with education have been recognized worldwide. He was invited by the European Council for the World Forum of Democracy. He is the first Indian to speak on education in the European Parliament. His campaign for including every education-deprived child is his campaign, Every Child Counts, which saw 6,500 children admitted to municipal and government schools, which empowered each student to contribute and be counted. He has been instrumental in adopting 300 girl students from the Sayyid community and helping this first generation of girl students to obtain formal education. His school, Espalier Experimental School, has been awarded the Most Innovative School and the Best Experiential School in India award. A world organization designed for change has recognized Espalier School by conferring the I Can Award and Mr. Joshi with Education Hero, Edu Hero Award. Mr. Joshi has spoken about his educational experiments at numerous seminars, webinars, workshops, and symposia. He has published many articles related to education and child development. His innovative work in the field of education has been recognized by the ex-President of India, Honorable Mrs. Pratibha Patil, international thinker, Mr. Sandeep Waslekar, senior social activist, Anna Hazare, and many others. He is a recipient of Best Teacher Award by Nashik Municipal Corporation, Rotary Club Vocational Award, Tejas Award by Deshdoot, Educationist Giona D'Souza Award, to mention just a few. Mr. Sachin Usha Vilas Joshi has done pioneering work in the field of experiential learning, focusing upon outcome-based teaching and learning. Who could have been a better choice to speak in this session but Mr. Joshi? I request Mr. Sachin Usha Vilas Joshi to share his views on outcome-based teaching and learning. We eagerly look forward to his deliberations on the topic. महाराष्ट्र काउंसिल ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट पुणे का ये 29th एनुअल ई कॉन्फ्रेंस है। गोखले एजुकेशन और HL के जो कॉलेज है उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है। वंस अगेन थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं सर डॉक्टर महस गोसावी सर उनको मैं प्रणाम करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि आप मुझे ये मौका देते हैं कि एजुकेशन के ऊपर डिफरेंट टॉपिक के ऊपर हम क्या अलग से थॉट प्रोसेस कर सकते हैं, उसके लिए आप मुझे यहाँ पे इनवाइट करते, हम उस पर विचार करते हैं, प्रस्तुत करते। उसके लिए मैं तहे दिल से आपका मैं शुक्रगुजार हूँ। आज के प्रोग्राम के चीफ गेस्ट सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर नितिन करमाळकर सर, थैंक यू सो मच। आप सब ये सुन रहे हैं, सभी गेस्ट ट्रस्टी डॉक्टर शिम्पी सर, डॉक्टर खंडेलवाल सर, उन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया, डॉक्टर कुलकर्णी, डॉक्टर सूर्यवंशी, थैंक यू सो मच। आज का जो टॉपिक दिया गया है आउटकम बेस्ड लर्निंग, मैंने डॉक्टर खंडेलवाल सर से बात किया था इस टॉपिक के ऊपर और हमने उसमें थोड़ा सा एक बदलाव लाया है। आउटकम बेस्ड लर्निंग आने के लिए हमें फ्यूचर एजुकेशन समझना बहुत ज़रूरी है,
तो आज का हम दो प्रयास में हम देखने वाले कि फ्यूचर एजुकेशन क्या होने वाला है, व्हाट इज एजुकेशन, फ्यूचर एजुकेशन क्या होगा, और 21st सेंचुरी में हमें क्या बच्चों में, अपने स्टूडेंट में, कॉलेज के स्टूडेंट में क्या लर्निंग आउटकम क्या आना चाहिए, उनमें क्या चीज़ें आनी चाहिए। तो उसके ऊपर 4 लर्निंग आउटकम है जो आने चाहिए, उसके ऊपर आज मैं प्रकाश डालूंगा। सो आज के सेशन में, एट द एंड ऑफ दिस सेशन, हम किन सवालों के जवाब ढूंढ लेंगे। एक तो व्हाट इज एजुकेशन, हम अब तक स्कूल्स में, कॉलेजेस में किस तरह का एजुकेशन देते आए हैं। ये कोविड-19 जो अभी ऑलमोस्ट जा रहा है, ये कोविड-19 की वजह से एजुकेशन सिस्टम में कुछ बदलाव आने वाला है। यस, बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। वो क्या है और उसके लिए हमारे प्रोफेसर्स रेडी है क्या। और 21st सेंचुरी में जो स्टूडेंट्स है, कॉलेज के जो बच्चे हैं, स्कूल के जो बच्चे हैं, टीचर्स है, प्रोफेसर्स, मेंटर्स, उनका रोल क्या होगा। ये 21st सेंचुरी में स्टूडेंट के लिए क्या करियर्स हो गए, और सबसे इंपॉर्टेंट, ये करियर अचीव करने के लिए, या हम जॉब्स कह सकते हैं, जॉब मिलने के लिए क्या हुनर होना चाहिए, क्या स्किल होना चाहिए, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे अहम चीज मैं कहूंगा, ये अहम सवाल मैं कहूंगा, ये जो हुनर है, ये जो स्किल्स है, बच्चे में लाने के लिए, कॉलेज के बच्चों के करियर में लाने के लिए टीचर्स ने, प्रोफेसर्स ने, कॉलेजेस में, स्कूल्स में कैसे पढ़ाना चाहिए, लर्निंग आउटकम क्या आना चाहिए, ये जो स्किल्स है स्टूडेंट में, हम इनकलकेट कैसे करें, जिसके लिए आज का ये ई कॉन्फ्रेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नेशनल लेवल का कॉन्फ्रेंस है कि फ्यूचर कॉलेजेस कैसे होंगे। सो इन्हीं सभी सवालों का हम इस सेशन में जवाब ढूंढ लेंगे। मैं शुरुआत करना चाहूँगा, let's start with the current scenario of education. National Employability Report of Engineering Graduate Survey says that the branches of civil, mechanical, electronic, engineering, only 7% of engineering are capable of employment. 93% student doesn't possess the required skill. That's why the Narayan Murthy said that there are no invention or earth-shaking ideas from India in last 17 years. हाँ, ये ठीक है कि हमने लो कॉस्ट में मंगल पे हम जाके आए, मंगल प्लैनेट पे हम जाके आए, पर ऐसा कोई इन्वेंशन जिससे वर्ल्ड चेंज हुआ है क्या है? कुछ भी नहीं है। इवन हम जो जिस प्लेटफॉर्म पे हम मिलते हैं, जूम और ये भी नहीं है। ऐसा क्या इन्वेंशन इंडिया ने लाया जिससे वर्ल्ड चेंज हुआ है? क्या रीजन है, क्यों नहीं हम कर पा रहे? व्हाट इज द रूट कॉज? Now question is, students are given education but they do not possess the skill. Why? इंसान का जो विकास है, उनकी जो प्रोग्रेस है, उसका जो रूट होता है, उसके जो जड़ें होती है, उसका जो हम क्या कहेंगे, उसका जो रूट होता है, उसका बेस होता है एजुकेशन। एजुकेशन कैसे दिया गया है? मेरा ये वाक्य, ये जुमला बहुत इंपॉर्टेंट है। दिया गया एजुकेशन, सिर्फ एजुकेशन नहीं, दिया गया, कैसे दिया, हाउ वी डिलीवर। सो हाउ वी आर डिलीवरिंग द एजुकेशन इन कॉलेजेस टिल नाउ? रट्टा मारना, रोट लर्निंग इज अवर एजुकेशन सिस्टम। मराठी में हम उसे गोकांड होका कहते, राइट। देखिए, स्कूल्स में, कॉलेजेस में जो बच्चे टॉपर्स होते हैं वो लाइफ में कम ही दिखते हैं, क्योंकि लाइफ में नंबर नहीं स्किल चलते हैं। हेलो प्रोफेसर, लाइफ में नंबर नहीं स्किल चलते हैं। और आज के एजुकेशन में हम पास्ट का इवेंट्स एंड वो सब नॉलेज हम दे रहे हैं, पर फ्यूचर सिटीजन जो बनाना है, एक 21st सेंचुरी का एक बेस्ट ग्लोबल सिटीजन स्टूडेंट बनाना है, हम वो भूल ही जाते। सिंपली हमें याद भी नहीं रहता। और आज का जो हम सेमिनार है, वो जो फ्यूचर सिटीजन कैसे बना सकते हैं उसके ऊपर है, ऐसा मुझे लगता है। और फ्यूचर स्टूडेंट बनाना हो तो इनोवेशंस, या हम ऐसा कह सकते हैं कि जो हमें इनोवेटर्स बनाना है, तो वो कैसे बने? तो ये इनोवेटर सिर्फ मेमोरी पे डिपेंड रह के नहीं बनने वाले, नहीं चलेगा वो, क्योंकि लाइफ मांगते हैं विजडम, और स्कूल्स, कॉलेजेस दे रहे हैं मेमोरी, रट्टा। आवर होल एजुकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन द मेमोरी। हाँ, जब हम कॉलेज में थे तब वो नोट्स थे, मैं भूल गया, शायद विजन नोट्स थे। स्कूल में जब थे वो 21 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, 21 अपेक्षित थे।
अभी चेंज हुआ होगा, कॉलेज के बाहर जो जेरोक्स के मशीन से वहाँ पे क्या बेचता है, एग्जाम से, एग्जाम के पहले ये रट्टा मारो, ये लिखो, पेपर काला करो, कितना पेपर कितने हमने सप्लीमेंट लगाए, मार्क ले लो। देखिए इसके लिए स्कूल कॉलेजेस में हमें इनोवेशंस थिंकिंग, इनोवेशन एटीट्यूड बढ़ाना पड़ेगा और उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। और ये बढ़ाने के लिए अपनी जो मेमोरी सिस्टम है, मेमोरी को हम जो केंद्र स्थान में ये उसको हटाना पड़ेगा और स्टूडेंट में, बच्चों में क्यूरियासिटी निर्माण करनी पड़ेगी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है लर्निंग आउटकम लाने के लिए। एज अ प्रोफेसर मैं क्लास में बच्चों में क्यूरियासिटी निर्माण कर पा रहा हूं कि नहीं? चिल्ड्रन मस्ट आस्क क्वेश्चंस, बच्चे सवाल पूछे। पर्पसली ऐसा एक माहौल कॉलेजेस में होना चाहिए, क्लास में होना चाहिए, घर में होना चाहिए, स्कूल में होना चाहिए, जिससे बच्चे सवाल पूछे, जिसको एक बहुत प्यारा वर्ड है अपने मैनेजमेंट में, इकोसिस्टम होनी चाहिए कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछे। एजुकेशन सिस्टम डिपेंडिंग अपॉन द रोट लर्निंग विल नेवर डिस्कवर एनीथिंग। नई चीज़ों के लिए पर्पसली हमें डिस्कवर करना पड़ता है, सर्च करना पड़ता है। ये गूगल जैसा नहीं होता है। उसके लिए स्टूडेंट को सवाल पूछने के लिए तैयार करना चाहिए और हम सवाल बच्चों को पूछने नहीं देते। उनको लगता है अरे ये बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, उद्धट लड़का है, ऐसा हमें लगता है जब बच्चे सवाल पूछते हैं तो। से बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अहम, बच्चों को हमें सवाल पूछने चाहिए, उसके लिए गलती करने के लिए मौका देना चाहिए। यस, लेट द चाइल्ड डू मिस्टेक। मिस्टेक करने का जो एक हम क्या कहते हैं उसको, एक डर जो होता है वो हमने निकालना चाहिए। नए कंसेप्ट है, नए एक्सपेरिमेंट्स है, इन्वेंशंस है, तो उसके लिए मिस्टेक तो होने ही वाली है। हम बड़े होके हम गलतियां करने से इस कदर से डरते हैं कि हम नए रास्ते ढूंढते नहीं, और उसकी शुरुआत, उसकी आगाज स्कूल से होती है, कॉलेज से होती है। टीचर बोलते हैं खबरदार जो गलतियां की, तो बच्चे क्या करते, कॉपी पेस्ट प्रोजेक्ट करते। जितने भी प्रोजेक्ट्स है, मन से आज खुद को पूछो, जितने भी प्रोजेक्ट्स बच्चे करते हैं, आपको क्या लगता है वो खुद लिखते हैं, बाहर बेचते हैं रिपोर्ट्स, कॉपी पेस्ट। सो माय डियर टीचर्स, माय डियर मेंटर्स, बच्चों को 1000 गलतियां करने को दो तो वो कॉपी पेस्ट बंद कर देंगे। सीरियसली, बच्चों को, स्टूडेंट को 1000 गलतियां करने दो, पर एक गलती 1000 बार नहीं। सी, दिस इज ऑल द एटीट्यूड्स। ये एक प्रोसेस है जो एज अ टीचर, एज अ मेंटर, मैं सिखाते वक्त मैंने बच्चों को कहना चाहिए, मेरे बॉडी लैंग्वेज से, मेरे बातों से वो आनी चाहिए, तब लर्निंग आउटकम अच्छा आएगा। तो जो स्कूल्स में, जो कॉलेजेस में, जो क्लास में जो होना चाहिए, इस प्रकार का इन्वायरमेंट होना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम में जो तब्दीली लानी है, चेंज करना है, इनोवेशंस लाने हैं, क्रिएटिविटी बढ़ानी है, तो मेरा ये और एक मुद्दा प्लीज़ एक्सेप्ट कीजिए कि हमें स्टूडेंट को सेल्फ लर्नर बनाना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट। देखो ये आई एम टॉकिंग अबाउट अ लाइफ लॉन्ग लर्नर, ओके, जो बहुत सारे लोगों में नहीं होता है, क्योंकि हमें एक आदत सी पड़ी गई है रेडीमेड आंसर की। हमें रेडी बने बनाए जवाब चाहिए, आंसर चाहिए। आपको पता है क्या, एवरी वीक मोर देन 10,000 मे बी उससे ज़्यादा बुक पब्लिश होते हैं। इसका अर्थ क्या है, इसका मीनिंग क्या है? इसका अर्थ ये होता है कि चारों ओर से ज्ञान का एक सैलाब आसमान से बरस रहा है। हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में रह रहे हैं, उसमें और एक यूनिवर्सिटी बढ़ गई है जिसका नाम है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। कितना हर तरफ से नॉलेज आ रहा है, बच्चे कितना पढ़ पाएंगे? और सुबह मिला हुआ जो इन्वेंशंस है, शोध है, नॉलेज है, शाम तक वो आउटडेटेड हो जाता है। सो कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन इज नॉट एजुकेशन। इंफॉर्मेशन जमा करना, इसे शिक्षा नहीं कह सकते। इसके लिए कंप्यूटर्स है, रोबोट्स है, गूगल्स है। आज वर्ल्ड का सभी सवालों का जवाब तो गूगल ही देता है। आज कुछ भी सवाल पूछो वो जवाब दे देगा। आजकल तो बड़े बड़े स्कूल्स में रोबोट टीचर आए हैं, और ज़्यादा देर नहीं लगेगी माय डियर प्रोफेसर्स,
कि कॉलेजेस में भी रोबोट टीचर आए क्योंकि ह्यूमन टीचर के सामने क्लास में 3 और 5 बच्चे आजकल क्लास में बैठते हैं और तनख्वाह क्या है आपको ही सबको पता है। तो एज क्या बोलते हैं हम संस्था चालक, एज इन्वेस्टर मैं क्या कहूँगा, अरे यार इतने साल सिखाने के लिए मैं टीचर्स और प्रोफेसर अपॉइंट करने से बजाय मैं एक रोबोट, उसकी क्या कॉस्ट है 10 लाख 15 लाख, और मैं सबसे इंपॉर्टेंट उसको अपडेट कर सकता हूँ, कभी भी लगा उसको इनपुट दे दिया, लेटेस्ट नॉलेज वो ऑटो अपडेट कर दे देगा और बच्चों को सिखाएगा। ऑलरेडी ये चालू हुआ है। एक कंपनी तो पर्सनलाइज रोबोट बनाया, पता है आपको, वो माँ की आवाज़ वो पूछता है मार्केटिंग वाला बंदा कि ये आपका बच्चा माँ की ज़्यादा सुनता है कि डैडी की ज़्यादा सुनता है, वो आवाज़ वो रिकॉर्ड कर लेता है, जिसकी ज़्यादा सुनता है वो आवाज़ जिसको देता है, जैसे इट्स लाइक अलेक्सा। और बच्चा जो भी पूछेगा रोबोट को वो आंसर देगा, जवाब, और वॉइस माँ की वॉइस से आएगा या डैडी की वॉइस से आएगा। ये स्टार्ट हुआ है। सो इंफॉर्मेशन देने के लिए ह्यूमन टीचर की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। सो व्हाट इज द नीड ऑफ ह्यूमन टीचर, ह्यूमन प्रोफेसर, मेंटोर? स्टूडेंट आस्क व्हेन शिवाजी महाराज वाज बोर्न, तो रोबोट बता देगा, गूगल इट, ये तुरंत बता देगा। सो व्हाट इज द रोल ऑफ ह्यूमन टीचर? व्हाई शुड आई अपॉइंट ह्यूमन टीचर? ये सवाल गवर्नमेंट भी पूछने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से हमारा एजुकेशन सिस्टम चल रहा है कि सरकारी स्कूलों में, सरकारी कॉलेजेस में एक बार टीचर लग गया तो उसको लगता है कि हो गया सब कुछ। तो वी नेवर पढ़ी, सरकार रिपोर्ट पढ़ी है, प्राइवेट में नहीं होता है, प्राइवेट में अनसिक्योरिटी होती है, अनसिक्योरिटी से तुम्हारा क्वालिटी बढ़ती है। तो अभी ह्यूमन टीचर का रोल टोटली चेंज होने वाला है, क्योंकि इंफॉर्मेशन आप इंफॉर्मेशन बताने वाले टीचर्स हो तो आपके लिए रोबोट रेडी है। तो रोल ऑफ द ह्यूमन टीचर हैज चेंज, आपका रोल बदलने वाला है। शिवाजी महाराज कहाँ बॉर्न हुए थे, कब हुए थे, ये बताना नहीं है। शिवाजी महाराज के हुनर जो है, उनकी जो स्किल है, उनकी जो क्वालिटीज है, व्हाट मेक्स हिम हीरो, वो क्वालिटी बच्चों में लानी है। और उसी को ही कहते हैं 21st सेंचुरी स्किल। दिस इज कॉल्ड अ 21st सेंचुरी स्किल, कि छत्रपति शिवाजी महाराज के जो स्किल्स है वो बच्चों में लाने हैं, उसको ही तो 21st सेंचुरी स्किल कहते हैं। अगर गूगल ही बच्चों को सिखाने वाला है तो टीचर की क्या जरूरत है? ये मेरा पहला सवाल है। इसलिए क्या स्कूल्स बंद होंगे, क्या कॉलेजेस बंद होंगे, उसको ताले लगेंगे? तो जरा देखिए 2 लेवल पे, 5 मिनट में स्कूल पे बताऊंगा, भले आप प्रोफेसर हो, और फिर कॉलेज में आऊंगा क्या बदलाव आने वाला है स्कूल में और कॉलेजेस में। देखिए स्कूल में की अहमियत कम होने वाली है क्या, जीरो होगी क्या? और सबसे इंपॉर्टेंट, स्कूल में फिजिकल प्रेजेंस कम होगी क्या, क्योंकि इंफॉर्मेशन बेस्ड सब कुछ हो रहा है? तो नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि स्कूल का जो दौर है ये ब्रेन डेवलपमेंट का वक्त होता है। The span of the schooling is the essential, crucial for the child brain development. But my dear professors, mentors, ये बात कॉलेज का एप्लीकेबल नहीं है। देखिए क्या होने वाला है। स्कूल में क्या होता है, आमतौर से 3 से 12 साल के बच्चे जो स्टूडेंट है वो स्कूल में आते हैं, आपके पास आते हैं, वो मैथ, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सब्जेक्ट सीखने नहीं आएंगे अभी। वो आते हैं खेलने के लिए, वो आते हैं डांस के लिए, वो एक्सप्रेस होने के लिए आते हैं। दे लर्न कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन, दे मेक फ्रेंड, दे लर्न टू रिस्पेक्ट, दे लर्न टू फॉलो द रूल्स, दे बिकम सोशलाइज, सिविलाइज होने के लिए आएंगे स्कूल में। जिंदगी के जो अच्छे उसूल्स है, वैल्यूज है, मॉरल्स है, ये सभी इसी उम्र में तो जाहिर होते हैं, विकसित होते हैं। और ये सब चीज़ों में जिसको हम क्या बोलते हैं, संस्कार जो बोलते हैं, वो ऑनलाइन से नहीं पा जाते। ये जो मैंने बताया आपको कि बच्चे स्कूल में क्या सीखने आएंगे, तो ये सब करने के लिए आएंगे, ये ऑनलाइन से नहीं दिया जाता है। ऑनलाइन से सिर्फ इंफॉर्मेशन ही दी जाती है। गणित, शास्त्र, भूगोल, ये जो ऑनलाइन से हम सिखा सकते हैं। That's why I always say the role of the teacher has changed.
और कोविड-19 ने तो पेरेंट्स स्टूडेंट को तो अच्छे से समझा दिया है कि बेस्ट मैथमेटिक्स कहाँ से सीख सकते हैं, बेस्ट पाइथागोरस का लेसन मुझे सीखना है वो कौन से वेबसाइट पे मुझे मिलेगा, कहाँ खान.com पे मिलेगा, कौन से यूट्यूब पे मिलेगा, वो ढूंढ लेगा, वो उसको सिखा लेगा। फिर वो आपके पास क्यों आएगा? वो आएंगे ह्यूमन क्वालिटी सीखने के लिए। वो स्कूल आएंगे 21st सेंचुरी के जो स्किल्स है, लाइफ स्किल्स, वो सीखने के लिए, और कॉलेजेस में भी आएंगे यही सीखने के लिए। देखिए सिर्फ कॉलेज में थोड़ा बदलाव होने वाला है। तो देखिए ऐसा कह सकते हैं हम कि जो पेरेंट्स है, पेरेंट विल सेंड द चिल्ड्रन और स्टूडेंट जो कॉलेज में आएंगे वो सिर्फ IQ डेवलप करने के लिए नहीं आएंगे, वो आएंगे EQ डेवलप करने, इमोशनल क्वेश्चन, सोशल क्वेश्चन। But again, this is not applicable everything to higher education, not colleges. Already many renowned college have given option of virtual learning or physical learning. और इस हिसाब से मतलब आपको फिजिकल कॉलेज करना है क्या, उसके हिसाब से फीस, या वर्चुअल करना है उसके इसके ऊपर फीस है, क्योंकि मैं इतना इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों कंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है। तो रोल चेंज होने वाला देखिए, और कोरोना के पीरियड में ये सब मतलब बहुत फास्ट हुआ। पोस्ट कोरोना ऐसे भी होने वाला है कि बच्चे ऑनलाइन लर्निंग पे ज़्यादा फोकस करेंगे, ऑनलाइन लर्निंग पे। पर स्कूल में इतना नहीं होगा, स्कूल में बच्चे फिजिकल आएंगे, कॉलेजेस में ऑनलाइन। तो कॉलेजेस में क्या होगा, कॉलेजेस में ऑनलाइन लर्निंग से इंफॉर्मेशन दी जाएगी, और जो मैं स्किल्स की बात कर रहा हूँ, हुनर की बात कर रहा हूँ, 21st सेंचुरी के स्किल की बात कर रहा हूँ, वो पढ़ने के लिए फिजिकल कॉलेज में आएंगे, प्रोफेसर के पास, आपके पास, और आप वहां पे वही जो गूगल पे है वही आप सिखा रहे हैं, तो वो ही इज नॉट इंटरेस्टेड, सी इज नॉट इंटरेस्टेड। वो सर मैं पढ़ के आई हूं, मुझे कुछ डाउट है, वो आपसे बात करनी है। हाँ, तो वो आपसे मोटिवेशन के लिए आएंगे, वो आपसे डाउट्स क्लियर करने के लिए आएंगे, वो आपसे स्टेज में एक साइकोलॉजिकल जो प्रोसेस है कि बच्चा ये यूथ चेंज होता है, वो जो मेंटोरिंग का जो थॉट है उसके लिए प्रोफेसर के पास आएंगे, इंफॉर्मेशन वो कॉलेज से बाहर गूगल से वो ले लेंगे। सो माय डियर मेंटोर्स, माय डियर टीचर्स, प्रोफेसर, mark my word, we need to change the college philosophy, we need to change the school philosophy. पेरेंट में ये बताना जरूरी है कि अभी एजुकेशन पेडागोजी चेंज हुई है। सो व्हाट टू चेंज? फर्स्ट वी नीड टू स्टॉप रोट लर्निंग, कॉलेजेस में बंद करना चाहिए। वी नीड टू स्टॉप रोट लर्निंग, वी नीड टू स्टॉप गिविंग इंपॉर्टेंस टू मार्क्स एंड रेडीमेड्स सवाल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ये मार्क्स है, ये लिख लो। लेट्स फोकस ऑन स्टूडेंट्स क्रिएटिविटी, इसके ऊपर हमें काम करना है, उस पर मैं आगे आने वाला हूँ कि हमें बच्चों के क्रिएटिविटी, और कॉलेजेस में यूथ में क्या क्रिएटिविटी टैलेंट भरा होता है। लेट्स अलाउ स्टूडेंट टू मेक अ मिस्टेक, टू डेवलप सेल्फ लर्निंग एटीट्यूड इन स्टूडेंट, ये सब बदलाव लाने हैं। To generate the feeling of I can, मैं कर सकता हूँ। कॉलेज के बच्चों में सबसे फेमस प्रोफेसर, सबसे फेमस मेंटोर, सबसे फेमस टीचर वो होता है, लर्निंग आउटकम उसका क्लास का सबसे ज्यादा आता है जब वो बच्चों में आई कैन का फीलिंग डाल सकता है। वो जो स्टूडेंट है, वो जो लड़की है, वो जो लड़का है, उसमें वो प्रोफेसर के बॉडी लैंग्वेज से, उससे सिखाने के स्टाइल से, उनके बात करने के, इससे वो बच्चों में अरे तू कर सकती है, कर पाएगी, आई नो यू कैन, ये जो फील है कि बच्चा के अंदर से महसूस कर सकता है। देखिए रूरल से बच्चे आते हैं, उसने कभी इंग्लिश पढ़ा नहीं रहता है, कुछ नहीं होता है, बेचारा कैसे तो भी आता है, डरा हुआ रहता है, 2-4 लड़कियां धाड़ इंग्लिश मारती हो, तो वो पीछे बैठा हुआ लड़के के ऊपर आपकी नज़र जाती होगी, उसके बोलता है अरे हो जाएगा, तो एडजस्ट हो जाएगा, कुछ भी लगा तो मैं हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स निकालना बहुत जरूरी है, ये रोल, तब लर्निंग आउटकम बढ़ेगा ना। सो ये सब चीज़ें चेंज करने, और सबसे इंपॉर्टेंट चेंज जो लाना है लर्निंग आउटकम बेस करने के लिए, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू डेवलप हैंड्स ऑन अप्रोच, लर्निंग एक्सपीरियंस बढ़ाना पड़ेगा।
मतलब ये चेंज लाना है तो मतलब IQ टू EQ, मतलब इमोशनल क्वेश्चन एंड क्रिएटिव क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। ऑडिटरी लर्निंग से लर्निंग बाय डूइंग में बात कर रहा हूँ। ये बदलाव लाना पड़ेगा। वाई वी नीड टू ब्रिंग द चेंज, क्यों लाना है? अभी ये मैं बताऊंगा, वो उससे पहले बिफोर दैट आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू, क्या आपको पता है जो बच्चे, जो स्टूडेंट आपके कॉलेजेस में, आपके स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, भले वो फर्स्ट स्टैंडर्ड्स में हो या ग्रेजुएशन में हो, वो जो जिस क्लास में वो पढ़ रहे हैं, वो आज से ज़्यादा 10 साल में, ओके, ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल में क्या करियर चूज करेंगे? अभी हम 21 में है, 30-35 हाइयर साइड में 10-15 साल में क्या करियर्स होंगे, कौन से जॉब्स अवेलेबल होंगे? जो बच्चे आज पढ़ रहे हैं तुम्हारे क्लास में, भले वो वर्चुअल हो या पेपर पे हो। अब मैं असल मुद्दे की बात कहने वाला हूं। देखिए, थोड़ा सा मैंने कुछ नोट्स निकाल के रखे हुए हैं वो सब चीज़ों के लिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम कम है, इसलिए थोड़ा सा मैं पॉइंट देख के ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट मैं बात अभी कहने जाने वाला हूं आपसे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो रिपोर्ट है, आप गूगल कर सकते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिपोर्ट सेज दैट the social and emotional skills are essential of the workforce of the future. देखिए, the kinds of the skill that social emotional learning, उसको ACL एड्रेस उन्होंने किया है, like such as problem solving skills, collaborations are the necessary for the jobs and labor market. देखिए, मतलब अकॉर्डिंग टू दिस रिसर्च, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो कह रहे हैं, आप गूगल कर सकते हो, 65% ऑफ द चिल्ड्रन एंटरिंग ग्रेड स्कूल विल अल्टीमेटली वर्क इन द जॉब दैट डोंट एग्जिस्ट टुडे, पुटिंग क्रिएटिविटी, इनिशिएटिव एंड एडेप्टिव एट द प्रीमियम। मतलब क्या है इसका? 21st सेंचुरी में कौन से करियर्स होंगे, कौन से जॉब्स होंगे? तो जो स्टूडेंट आज पढ़ रहे हैं 2021 में, जो स्कूल में, कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, अंक हासिल कर रहे हैं, उनमें से 65, आई एम अगेन सेइंग 65% स्टूडेंट ऐसे जॉब करने वाले जो आज के दौर में एग्जिस्ट ही नहीं है। उन जॉब का कोई अस्तित्व ही नहीं है, वो क्रिएट ही हुए नहीं है। पर लेकिन मैं ऐसा कहूँगा बिग बट, लेकिन वो जो करियर है, उन करियर को लगने वाले जो स्किल्स है, वो फ्यूचर जॉब को लगने वाले जो क्वालिफिकेशंस है, उनकी जो रिक्वायरमेंट है, वो फाइनल है। वो क्या है? वो पता है क्या है? वो है स्किल्स जो वर्ल्ड इकोनॉमी, मैं नहीं कह रहा हूँ, आप तो प्रोफेसर्स हो, डॉक्टरेट आपने ली है, मुझसे ज़्यादा आपको पता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने बताई गई द मोस्ट demanding skill of future is critical thinking, collaboration, creativity, communications, 4C जिसको कहा गया है। Now my question is, ये 4C आपके क्या बोलते, हमें लर्निंग आउटकम लाना है, तो ये लर्निंग आउटकम में 4C आ रहे हैं क्या? ये आपके टीचिंग स्टाइल में है क्या? 21st सेंचुरी में सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ होने वाला है, कम से कम जॉब्स होने वाले हैं, और जो जॉब अवेलेबल होंगे वो सोशल एंड इमोशनल स्किल बेस पे होंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी कैन नॉट क्रिएट द इमोशंस, थॉट्स, आइडियाज। अब ये जो 4C स्किल्स है, वो कॉलेज के बच्चों में या स्कूल के बच्चों में कैसे आए, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये समझने पहले हम वी आर टॉकिंग अबाउट द लर्निंग आउटकम, हाउ लर्निंग एक्यूर्स। बच्चे पढ़ते कैसे, हम कैसे सिखाते हैं? टीचर्स से सीखते हैं? नहीं, रिसर्च सेज बच्चे सेल्फ लर्नर होते हैं, वो एक्सपीरियंस से सीखते हैं, और वो जो स्टूडेंट है वो लर्निंग बाय डूइंग से सीखते हैं। तो कॉलेजेस में ये 3 चीजें हो रही है क्या? 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 21st सेंचुरी के स्किल के लिए क्लास में हम कैसे सिखाए? नाउ लेट्स चेक आउट द सॉल्यूशन। नाउ यू कैन, मतलब हम इसके ऊपर सॉल्यूशन पे बात करेंगे कि एज क्लास में, कॉलेजेस में हम क्या करना चाहिए। पहली चीज, कॉलेजेस में हमें क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ये लाने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा।
जिंदगी बिताते हुए डेली कॉन्स्टेंटली अनगणित प्रॉब्लम्स आते हैं, सवाल आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। एक प्रॉब्लम सॉल्व किया तो दूसरा खड़ा हो जाता है। ये प्रॉब्लम को हिम्मत के साथ, हौसले के साथ और हैप्पी एटीट्यूड के साथ सॉल्व करना, इसे तो जीवन कहते हैं। अब हिम्मत और खुशी के साथ प्रॉब्लम सॉल्व करने का जो ट्रेनिंग है हम स्टूडेंट को दे पा रहे हैं क्या? ऐसा नहीं कि हाँ चलो इसके ऊपर एक मोटिवेशनल स्पीकर बिठा दे, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। हम पाइथागोरस सिखाते सिखाते ये चीज़ें ला रहे हैं, हम हिस्ट्री सिखाते सिखाते ये चीज़ें हम ला सकते हैं। वही तो, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि प्रोफेसर एंड टीचर्स आपका रोल चेंज हो रहा है। आपको आपका टॉपिक सिखाते सिखाते ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बच्चों में लाने। आपको याद होगा कि हमारे वक्त स्कूल में गाइड होता था जिसको हम रेडीमेड नोट्स कहते थे। उसकी आदत जो है अभी वो ठीक नहीं है। लाइफ में वैसा नहीं होता, रेडीमेड आंसर नहीं मिलते। तो क्रिटिकल थिंकिंग लाने के लिए कॉलेजेस में या कई भी जगह पे, घर में भी, स्कूल में भी, हम 2 एक्टिविटी अपने करिकुलम में ला सकते हैं। पहली चीज़ आप कर सकते हैं, लेट द चाइल्ड डू वेरियस एक्सपीरियंस। कैसे, मैं बताता हूँ कैसे कर सकते हैं। लेट द चाइल्ड डू वेरियस एक्सपीरियंस जो मैंने कहा, कैसे? वी लर्न थ्रू 5 सेंसेस। देखिए, हम सभी जन 5 सेंसेस का जो एक्सपीरियंस है हम स्कूल में, कॉलेज में हम दे सकते हैं। उसके लर्निंग बाय डूइंग की कॉन्सेप्ट हमें लानी चाहिए। आपके जो टीचिंग है, मुझे कल क्या सिखाना है, परसों क्या, आपने 30-40% करिकुलम ऐसा डिजाइन करो जो लर्निंग बाय डूइंग का हो। आप कर सकते हो। बैठना है कि मैं इसमें से कौन से टॉपिक को लर्निंग बाय डूइंग में कन्वर्ट कर सकता हूँ, ये एक चीज़। सेकंड, डिज़ाइन थिंकिंग लाना है। इस पर मैं बहुत 4 घंटा बात कर सकता हूँ डिज़ाइन थिंकिंग के ऊपर। स्टूडेंट के सामने चैलेंजेस रखो, प्रॉब्लम पेश करो, उनको वो चैलेंजेस फील करने को कहो माइंड लेवल पे। फिर वो जो चैलेंजेस है वो को सॉल्व करने के लिए उनको 4-5 ऑप्शंस ढूंढने का को ग्रुप बनाओ। मतलब क्लास में आपके 40 बच्चे हैं तो 5-5, 6-6 बच्चों का ग्रुप बनाओ, डिस्कस करो, उनके सामने प्रॉब्लम डालो, प्रॉब्लम के ऊपर फील करो, फील के ऊपर आप ही हर कोई ग्रुप एक प्रॉब्लम के ऊपर 5-5 ऑप्शन लाएगा और उसमें से जो बेस्ट ऑप्शन है वो आप फाइनल करो, उसका प्रेजेंटेशन करो। ऐसे ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन कहते हैं। वो हफ्ते में 1 बार तो भी होना चाहिए। क्लास में, असेंबली में हम कर सकते हैं ये सब चीज़ें। सी, ब्रेन डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और वो होता है एक्सपीरियंशियल लर्निंग से। क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ती है एक्सपीरियंशियल लर्निंग से। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये एजुकेशन फील्ड का सबसे बड़ा इन्वेंशन जो हुआ है वो कहता है कि बच्चों का जो दिमाग होता है, जो क्या बोलते हैं उसको, नर्वस सिस्टम होती है, जो वो डेवलप पहले 12, 18, 21 साल के अंदर होती है। मोर देन 500 मिलियन ब्रेन सेल्स डेड होते हैं 21-22 साल के बाद। जितना ब्रेन को स्टिमुलेशन मिलेगा उतने सिनैप्स निर्माण होंगे, जितना सिनैप्स निर्माण होगा उतना बच्चा आगे इंटेलेक्चुअल बनेगा। तो स्टिमुलेशन के लिए एक्सपीरियंशियल लर्निंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हो, देखो जो रूरल के जो बच्चे, ग्रामीण के बच्चे, वो ज़्यादा आगे जाते हैं क्योंकि वो ग्रामीण का बच्चा एक्सपीरियंशियल लर्निंग से ज़्यादा सीखता है। ठीक है, सिर्फ वो सिटी के जो तरीके होते हैं, मैनर से उसको सीखने को वक्त लगता है, बाकी उसका डेवलपमेंट ब्रेन लेवल का बहुत अच्छा होता है। सेकंड में पॉइंट में कहना चाहूँगा कि ये जो मैं लर्निंग आउटकम की बात कर रहा हूँ, जैसे मैंने क्रिएटिव इसका बात किया, मैंने क्रिटिकल थिंकिंग का बात किया, अभी मैं बात कर रहा हूँ कोलैबोरेशन। अब देखते हैं कि हम कोलैबोरेशन कैसे स्टूडेंट में लाए। उसके लिए कॉलेज में हम क्या कर सकते हैं। कोलैबोरेशन इज एसोसिएट विद द नेगोशिएशन स्किल, कॉन्फ्लिक्ट रिवोल्यूशन, सेल्फ एडवोकेसी, डिसीजन मेकिंग, लीडरशिप। ये एक चीज़ है, चीज़ ऐसी आती है यहाँ इस जगह पे आएगी जहाँ पे सबसे ज़्यादा हम कॉलेजेस में, एक ही जगह है जहाँ पे वो आती है। कॉलेजेस में आपके यहाँ पे प्लेग्राउंड होगा, वो प्लेग्राउंड पे ये कोलैबोरेशन स्किल डेवलप होती है। तो इसके लिए कॉलेजेस में स्टूडेंट को भरपूर खेलना चाहिए, यूथ ने भरपूर खेलना चाहिए। कोलैबोरेशन से ये जो स्किल है वो आता कहाँ से? वो आता है स्पोर्ट्स से आता है। देखिए, और बच्चे स्पोर्ट्स खेल रहे हैं क्या? वो कॉलेज के बाहर के कट्टे पे बैठे हुए हैं यार, बहुत बुरा लगता है।
जब मैं कॉलेज में था तो इतने इवेंट्स होते थे, सोशल चेंजेस के प्रोग्राम होते हैं। आजकल तो कॉलेज के बाहर मेरे भाई का बर्थडे विड्डे ऐसे पोस्टर लगते हैं, पॉलिटिकल, बहुत बुरा लगता है। तो आज के बच्चों की जो बदनसीबी है कि वो खेलते ही नहीं है, और वो खेलते हैं ज़्यादा पर मोबाइल पे खेलते हैं, मोबाइल गेम खेलते हैं। टीम गेम से वो गोल से वो अचीव करते, डिस्टेंस अचीव करते कि मुझे क्या खेलना है, और वो खेलने से ही कोलैबोरेशन अलाउड होता है। If you want your child to get a good job in future, please let him play now. उसका एक रिसर्च है, मैं बताना आपको चाहूँगा। जेरॉक्स मशीन की जो कंपनी है उसकी जो सीईओ है उरिलिसा ने एक सर्वे किया था। वो कहती है कि एट द एंड ऑफ द डे वी हैव टू फायर अ लॉट ऑफ पीपल। हमें बहुत लोगों को डांटना पड़ता है जो सुन के खुद में इंप्रूवमेंट करते, वो वैसे कुछ एम्प्लॉय होते हैं, और कुछ एम्प्लॉय ऐसे होते हैं कि वो गलती करते हैं और उसको जब डांटते तो जॉब को वो रिजाइन कर देते। डांटने से ये लो मेरा रिजिग्नेशन, मुझे पसंद नहीं आया। उसने दोनों टाइप के जो एम्प्लॉयज होते हैं उनके बायोडाटा निकाले और उसका स्टडी किया। बहुत प्यारा रिसर्च है। जो जॉब कंटिन्यू करते हैं विद इंप्रूवमेंट, उनके बायोडाटा में स्पोर्ट्स गेम का एक मेंशन रहता कि वो कोई ना कोई कॉलेज में वो खेलता था, और जो रिजाइन करते थे उनके बायोडाटा में स्पोर्ट्स का इंपॉर्टेंस नहीं था, वो खेलते नहीं थे, उसका जिक्र ही नहीं था कि वो खेलते कि नहीं। सो कोलैबोरेशन मतलब सहयोग, सहकार्य, सहभाग। आजकल के बच्चे फेल्योर एक्सेप्ट नहीं कर पाते। एज पर द टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट, मतलब अभी का 2018 का 10,000 स्टूडेंट ने सुसाइड किया है, और अटेम्प्ट तो मोर देन 81,000 बच्चों ने किया है, विच इज द हाईएस्ट इन लास्ट 10 ईयर्स। एंड मेन रीजन डिप्रेशन, फेल्यूर्स। और ये डिप्रेशन फेल्योर कहाँ से आता है यार? बच्चे खेलते नहीं। स्पोर्ट्स से क्या होता है, फेल्योर एक्सेप्ट करने का स्टार्ट हो जाता है, बच्चे एक्टिव होते हैं। सो कोलैबोरेशन स्किल आपको बच्चों में लानी है। एंड थर्ड पॉइंट, एंड फिर लास्ट पॉइंट बोल के मैं रुकूंगा। थर्ड पॉइंट इज द क्रिएटिविटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, कॉलेज के बच्चों में ये आनी चाहिए। आने वाले कई सालों में IQ विल नॉट बी इंपॉर्टेंट, EQ एंड क्रिएटिव क्वेश्चन, CQ विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। 21st सेंचुरी में वही हीरो बनेगा जो नई निर्मित करेगा, जो नया विचार करेगा, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करेगा। आई विल गिव यू एग्जाम्पल। आपकी बेटी डॉक्टर डिग्री ले रही है तो उसके साथ माइंड क्रिएटिव होगा तो वो रिसर्चर बनेगी, उसे रिसर्च पेपर में बड़े बड़े जर्नल में पब्लिश होगा। आपका लड़का है, आपके कॉलेज का बच्चा CA की डिग्री ले रहा है, तो CA डिग्री के साथ उसका क्रिएटिव क्वेश्चन हाई होगा तो वो इकोनॉमिस्ट बनेगा। आपका स्टूडेंट आर्किटेक्चर की डिग्री ले रहा है और उसके साथ वो क्रिएटिव क्वेश्चन होगा तो वो आर्टिस्ट बनेगा, वो सिटी डिजाइन करेगा। आपको कोई स्टूडेंट इंजीनियरिंग कर रहा है और इंजीनियरिंग के साथ उसने क्रिएटिव थिंकिंग लाई तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नए नए प्रोडक्ट डिजाइन करेगा। आप बताइए कोई भी फील्ड, उसमें क्रिएटिविटी ये मस्ट है, मस्ट। उसके लिए आप प्रोफेसर, आप बच्चों में क्रिएटिविटी लानी है तो बच्चों को पेंटिंग्स के लिए मोटिवेट कीजिए। कोई आर्ट बनाने, आर्ट में आने के लिए ये कीजिए कि कोई भी आर्ट हो ना, कोई भी म्यूजिक हो, कोई भी डांस हो, कुछ उसमें बच्चों को इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है। इससे क्रिएटिविटी बढ़ती है। बच्चों को अलग अलग स्टोरीज बताओ, स्टोरीज से क्रिएटिविटी बढ़ती है। मोटिवेशनल स्टोरीज बताओ। मुझे तो वो प्रोफेसर बहुत ही पसंद है कि 45 मिनट का लेक्चर है वो 30 मिनट में खत्म करता है, लास्ट 10 मिनट वो एक स्टोरी बताता है, एक मोटिवेशनल स्टोरी बताता है। वो बच्चा आपको जिंदगी भर भूलेगा नहीं कि वो बोलेगा यार मैं वो टॉपिक भूल गया पर वो बंदे ने मुझे डेली एक स्टोरी, वो प्रोफेसर मुझे बताता था 10-10 मिनट की, जिससे मुझे लाइफ के स्किल्स मिलते थे, मुझे एक एटीट्यूड, एक दृष्टिकोण मिलता था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्रिएटिविटी आप ये इस स्टाइल से ला सकते हो। एंड लास्ट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, दैट इज कम्युनिकेशन स्किल। हर कॉलेजेस में, हर यूनिवर्सिटी में इसके ऊपर बहुत बड़ा काम करना जरूरी है, क्योंकि यही चीज अभी बची है जो अपने इंडिया को आगे ले जा सकती है।
अपने इमोशन को हम सही ढंग से एक्सप्रेस कर नहीं पाते हैं, दूसरे के इमोशंस हम अच्छी तरह से समझ नहीं पाते। कम्युनिकेशन स्किल यानी क्या, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने इमोशन एक्सप्रेस करें, दूसरे के इमोशन समझे एंड पब्लिक स्पीकिंग, ग्रुप स्पीकिंग, ये तीन चीजों के ऊपर काम करना है कॉलेज में, स्कूल में लैंग्वेज डेवलप करनी है, उसके लिए एक इन्वायरमेंट तैयार करना है। इसके लिए हम स्कूल में, कॉलेजेस में लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए हम एक्टिविटीज ले सकते हैं। आर्ट कॉलेज में होगा, आई एम टॉकिंग अबाउट साइंस, इंजीनियरिंग, उसमें होना चाहिए ज़्यादा, क्योंकि हमको लगता है कि हम साइंस के बच्चे यानी सिर्फ बुक ही पढ़ेंगे, नहीं, लैंग्वेज डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पर हम सबसे अहम बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूँगा, टीचर कम्युनिकेशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए, इंस्पिरेशन करना चाहिए। जैसे मैंने बताया ना कि रोल ऑफ द टीचर चेंज, मतलब क्या, आपका कम्युनिकेशन ऐसा होना चाहिए कि मेरे आधे घंटे के स्पीच में 10 तो भी मेरे ऐसे पॉइंट होने चाहिए जिससे बच्चा इंस्पायर हो। तो हम तो बच्चों को तो डांटने पे ही बैठे, कुछ तो कुछ टोमना मारने को ही बैठे रहते हैं, कुछ भी क्या तो वो बच्चों को हम उसकी गलतियां निकालने को बैठे रहते। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। थॉट प्रोसेस कैसी बनती है, हाँ, थॉट प्रोसेस तो वैसी बच्चे कि हम बच्चों में कैसे ये करें। मैं एक एक्सपेरिमेंट बताना चाहूँगा, मेरा नहीं है पर मैंने खुद किया है। मेरे स्कूल में मैंने कहीं से पढ़ा था कि 30 बच्चों का क्लास था, उसको हमने 2 ग्रुप में डिवाइड किया। एक 15 बच्चों को एक क्लास में बिठा दिया, दूसरे 15 बच्चों को दूसरे क्लास में बिठा दिया। और फर्स्ट ग्रुप में हमने एक मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम्स डाला और बताया कि ये बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत ही डिफिकल्ट है। खुद आइंस्टाइन को ये प्रॉब्लम नहीं आया था। देखिए कोई नज़दीक है क्या, मुझे पता है आप तो बहुत डम बच्चे हो, बहुत ही ये हो, सब गैर गुजरे हो, किसी को कुछ आता नहीं है, सब ढ बच्चे हो। अब देखिए आता है तो देखिए सॉल्व कीजिए, और बोल के निकल गए प्रोफेसर। दूसरे क्लास में गए जहाँ पे दूसरे 15 बच्चे बैठे थे, वही मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम्स ब्लैक बोर्ड पे लिखा गया और कहा कि हेलो बच्चे, आप तो बहुत प्यारे बच्चे, बहुत इंटेलेक्चुअल बच्चे हो, ये वर्ल्ड का सबसे इजीएस्ट मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम मैं आपके सामने डाला है, हर एक को बच्चों का आएगा और आप तो बहुत ही स्मार्ट है, और बहुत मोटिवेट किया, निकल गए। आधे घंटे के बाद दोनों क्लास में जाने के बाद जिस क्लास में कहा था कि आप बहुत ही प्यारे बच्चे हो, प्रॉब्लम बहुत इजी है, वहाँ के 15 में से 14 बच्चों को वो मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम वो खुद सॉल्व कर पाए। और जिस क्लास में कहा था कि आप डम बच्चे हो, आपको कुछ आता नहीं है और बहुत ही निगेटिव लेबलिंग किया था, वो क्लास में 15 में से 14 बच्चों को कुछ आया ही नहीं, अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए। क्या होगा, क्या हुआ वो उनके माइंड के लेवल पे। जब हम बच्चों को बोलते हैं अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपने सिखाने के तरफ से यू कांट, वो होता नहीं है, तो लर्निंग आउटकम आएगा ही नहीं भैया, आप समझ लीजिए ये चीजें। सो सवाल ये नहीं है कि हमारा स्टूडेंट इंटेलेक्चुअल है या नहीं है, सवाल ये है कि वो किसमें इंटेलेक्चुअल्स है, वो प्रोसेस है, वो ढूंढना पड़ेगा हमें। ओके, आपको हार्वर्ड गार्डनर की तो थ्योरी पता ही होगी, आप सब प्रोफेसर हो। तो मैं अभी कंक्लूड करता हूँ। कंक्लूड करने से पहले वापस से मैं डॉक्टर खंडेवाल सर का मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ। मेरे मेंटोर, मेरे गुरु सर डॉक्टर मसो गोसावी सर, थैंक यू सो मच। आप मेरा ये सब सुन रहे हैं, मुझे भी आप मोटिवेट करते हो, बार बार मुझे अलग अलग टॉपिक पे मुझे इनवाइट करते हो, उसके वजह से मेरे भी कुछ टॉपिक पे एक ब्रेनस्टॉर्मिंग हो जाता है, तो उसके लिए भी थैंक यू सो मच। जाते वक्त मैं कंक्लूड यही कहना चाहूँगा कि कॉलेज के बच्चे हो, स्कूल के बच्चे हो, अपने इंडिया का यूथ हो, बच्चों में सिर्फ 4 सी लाओ, सिर्फ 4 सी, उस हिसाब से ही आपको सिखाना है। 4 सी मैंने ऑलरेडी बता दिया, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल। उसके लिए बच्चों को एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे आपको फोकस करो, डिज़ाइन थिंकिंग मॉड्यूल कॉलेजेस में लाओ, बच्चों को ग्राउंड पे खेलने के लिए मोटिवेट करो, बच्चों को क्रिएटिविटी लाने के लिए बड़े बड़े कॉलेजेस में ऐसे छान बहुत ही प्यारे फेस्टिवल लो, पेंटिंग, ड्राइंग्स, और उसके लिए बच्चों को आप स्टोरीज बताओ, पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स लो,
ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच। मेरे कुछ भी वीडियोस आपको देखने होंगे या मुझे फॉलो करना है तो सच की पाठशाला ये मेरा यूट्यूब चैनल है, मेरा ब्लॉग है एजुकेशनलिस्ट सचिन उषा विलास जोशी, वो ब्लॉग आप फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर मुझे आप सचिन उषा विलास जोशी सर्च करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं एजुकेशन के ऊपर अलग अलग प्रोग्राम्स देखने के लिए। वंस अगेन थैंक यू सो मच, धन्यवाद। Thank you, Sri Sachin Ushavilas Joshi, for your studied and expert deliberations on the topic outcome-based teaching and learning, a student-centric teaching and learning methodology, in which the course delivery, assessment are planned to achieve stated objectives and outcomes. It places each part of the educational system around goals or outcomes. Hence, it differs from the conventional methodologies as it focuses on life skills, basic skills, professional and vocational skills, intellectual skills, and interpersonal and personal skills. Clarity of one's thought, clarity of focus and action, flexibility of approach, student-teacher involvement are some of the benefits of outcome-based education. Mr. Joshi has elaborated upon the principles and objectives of outcome-based education by discussing how content without purpose is only trivia. If our students come from strong, healthy, and functioning families, it makes our job as teachers easier. But if they do not come to us from strong, healthy, functioning families, it makes our job more important. This is exactly what Mr. Sachin Ushavilas Joshi underlines through his various ventures, innovations, and deliberations. On behalf of MCEM and on behalf of all at Gokhale Education Society, I thank Mr. Joshi for his presentation and all the participants for their attentive participation. Thank you. Thank you very much. Thank you, madam. After that technical session by Mr. Sachin Joshi, we are now going to proceed with paper presentation session. I request Ms. Deepika Moria to present her paper. Good afternoon to the respected dignitaries, delegates and participants. I am Deepika Moria, working in Computer Science Department of Gokhale Education Society's HL College of Science and Commerce. Today I am here to present my paper on the topic Use of Technology for Development of E-Content. Let's start. In the world that we currently live in, technology is very vital factor. With each passing day, a new software or gadget is being brought into the market that serves to improve our lives in one way or another and make it much easier. Technology is growing its importance in the education sector day by day. The more technology advances, the more benefit it brings for students at every education level. Technology that is used in the classroom is very benefit in helping the student understand and observe quickly what they are being taught. Technology has proved how important it is as when, due to COVID-19 pandemic, students were not able to take their physical classes. Due to technology, they are able to attain their online virtual classes. What is e-content? E-content is defined as any digital content prepared in pedagogical framework consisting of text, images, graphics, animation, video, charts and many more, and which can be used for education purpose. Now let us see what are the phases of e-content development. The first phase is analysis phase. In this phase, we must know the audience and the skill, budget of the e-content delivery, method and its constraint with due dates. Next phase is design phase. In this phase, we must know the planning, use of relevant software, required skills,
creative and innovative interaction of subjects, content like text, picture, videos and suitable animation. Third phase is development phase. It helps to create the e-content by mixing of text, audio, video, animation, references, blogs, links and MCQ with some programming specification like home, exit, next, etc. The next phase is testing phase. It helps to administrator the e-content in the actual educational field. In this phase, we must test the spelling mistakes, content error, clarity of picture, relevant videos, appropriate audios, timing of animations and hyperlinks. Next phase, the implementation phase. It helps to administrator the e-content to the target audience. This phase explains how to install and how to use it, the difficulties experienced while using e-content. It checks the product accuracy and quality maintenance. And the last phase is evaluation phase. It helps to satisfy the e-content and its effectiveness. This phase considered feedback from both learner and instructor. After the feedback reaction, the e-content is designed again as post-production for effective delivery of e-content. Some ways in which technology has become an integral part of everyday work. First, communication technology. Long distance communication is one area where technology has made a profound impact on workplaces. Today, email, SMS and various chat software tools have become principal mode of business communication. Also, the use of video conferencing is on the rise, thus reducing the need of physical travel. Next, office productivity. Word processing, spreadsheet, digital presentation and other office productivity software have become so commonplace that their use has become routine. And this has completely transformed office work. Next, record keeping and retrieval. Most businesses have switched to electronic database rather than paper files to store and access their record. Internet and search. One other major tool that has become so commonplace so as to become nearly unremarkable is the internet and its organization through speech portals such as Google and Bing. Next, decentralized work and cloud computing. The proliferation of laptops, tablets and smartphones has made it easier for professionals to work from anywhere and has led to flexible work environment like freelancing, work on demand and work from home. Finally, I come to the end by saying that technology is the boon for students in the time of coronavirus. Here, I end my presentation with warm note of thanks to all the audience. Thank you so much. With that paper presentation, we come to an end of our technical session 4, and now we will meet at 3 p.m. for valedictory function. I request everyone to please be present for the same.